Good evening, friends. Suswagatam. You are welcome to Saspandan TCM Academy. I am Vivek Rane. We are learning cosmetic and dermatology in acupuncture. So, today our subject. Cosmetic and dermatology, how we can manage with naturopathy, with a natural treatment. So, what is the naturopathy? Naturopathy is a holistic system of medicine that focus on body's innate ability to heal itself using natural therapies. So, what is the core principle of the naturopathy? It is the healing power of the nature. Naturopathy is a healing power of nature. Trust in the body's inherent, inborn wisdom to heal. Secondly, it's identify and treat the root cause. Naturopathy identify and treat the root causes, not just symptoms. Next, do no harm. Naturopathy do not make harm, do not make any side effects. So it's use the latest invasive method. Next, naturopathy, naturopath, doctor as a teacher. How it's a naturopath educating the patient. Okay, so how to manage lifestyle, how to manage diet, how to manage sleep. So always naturopath educating the patient. Now, naturopathy treat the whole person. What is whole person? That is the mind, body, and spirit. Preventive is the K in the naturopathy. Prevention. Prevention is the K in the naturopathy because it's focused on long-term wellness. So what are the common naturopathic therapies? So we are doing the herbal medicines, we are doing the nutritional therapy, fasting and detox. That is then hydrotherapy, our acupuncture, yoga and meditation, and important lifestyle counseling.
So what is the integration of naturopathy with cosmetic and dermatology? Holistic skin and beauty care is a growing trend. So, so we are here. We are how they blend. So concern about the acne. Suppose acne is there on your face. Detox in naturopathy, there is a treatment in the detox. Gut health. Gut health is a very important to manage the acne and herbal therapies. Then pigmentation. In case of pigmentation, we are doing the liver cleaning, liver cleaning and antioxidant therapy. We are applying on the patient antioxidant therapy. Then hair loss, nutritional therapies, scalp massage, and acupuncture. Then aging. So antioxidant, stress reduction, and yoga. Antioxidant is the key role in the aging because when we are consuming the oxidant product, okay, so aging is going fast. Okay, so anti-aging, if you want do the anti-aging, so antioxidant product is the key role. Okay, so this is a little introduction about the naturopathy. So my daughter with us, Dr. Minakshi. So Dr. Minakshi is the naturopath. She is practicing in the Nagpur. And she is very expert in naturopathy. So I am going to introduce her and handling this session to her. Going to unmute her. Okay, Dr. Minakshi. Dr. Minakshi, take over. You are unmuted. सभी को मेरा नमस्कार. Am I audible? सभी को मेरा नमस्कार. आवाज आ रही है मेरी? Am I audible? Yes, सब लोग yes बोल रहे हैं. You are Okay. audible. You are audible. You are visible. Okay. Thank you, Baba. It's your blessings actually. सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देने के पहले मैं बाबा को थैंक्स बोलना चाहूंगी. बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे साथ और उनके ही राह पे मैं चल रही हूँ दिए हुए. और
काफी सपोर्ट मुझे मिलता रहता है। और इसी पॉजिटिविटी से मैं अपने सारे ट्रीटमेंट्स को बहुत ही अच्छी तरह से मैं कर पाती हूँ। तो सभी को आज की क्लास के बारे में बताना चाहूंगी। सबसे पहले नेचुरोपैथी में जो भी हमारी मोडालिटीज है, वो हम किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके और अलग अलग जो भी नेचुरोपैथी के प्रिंसिपल्स है, उनके साथ में हम सारा ट्रीटमेंट करते हैं। और ये ट्रीटमेंट एक कोई डिसीज पे नहीं होता है पर्टिकुलरली, ये कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है, एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट होता है। तो अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं हूँ मीनाक्षी मालविया और मैं लास्ट 6 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, और नेचुरोपैथ अपना ट्रीटमेंट नेचुरल तरीके से करते हैं। और उसके अलावा मैंने काफ़ी चीज़ें कस्टमाइज की हुई हैं, जैसे कि बाबा के डायरेक्शन से मैं कुछ एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और साथ ही साथ पंचकर्मा और कुछ जो फिजियोलॉजी इफेक्ट्स के लिए हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी जो नेचुरोपैथी में यूज की जाती है, इससे मैं अपने पेशेंट्स को कस्टमाइज करके मैं ट्रीट करती हूँ। तो मैं आज अपने कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, और जो मेरा भी नॉलेज है, मैंने कोई प्रिपरेशन खास की नहीं है, स्टिल मैं अपने नॉलेज के साथ में आपको प्रेजेंट कर रही हूँ आज की जो क्लास है उसके लिए। तो होप ऑल ऑफ यू विल एंजॉय। और तो कॉस्मेटोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी के टॉपिक पे आने के पहले मैं एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहूंगी कि नेचुरोपैथी में नेचुरोपैथी जो है वो एक प्रिंसिपल, उसमें 10 प्रिंसिपल्स होते हैं। और ये प्रिंसिपल जब हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, हमारी लाइफ इन्हीं प्रिंसिपल से चलती है। वो नेचुरोपैथी में जो है डिसीजेस, या जैसे अभी स्किन के बारे में, या पर्टिकुलरली कुछ एक ऑर्गन्स जो होते हैं बॉडी के, सिम्टम्स आते हैं अलग अलग, इसके ऊपर में नेचुरोपैथी का एक ही रहता है, रूट कॉज से जो है वो डिसीजेस को ठीक किया जाता है। तो फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल है हमारा, ऑल डिसीजेस आर सेम, देयर कॉजेज आर सेम एंड देयर ट्रीटमेंट इज ऑल्सो सेम। इसका मतलब है कि सारे डिसीजेस सारे डिसीजेस जो है वो सारे डिसीजेस हमारे एक ही होते हैं। यानी कि जो हमारी वाइटल फोर्स एनर्जी है वो कम होने से, और उसके साथ में जब हमारा जो डिसीजेस हमारे फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ लो वाइटल फोर्स एनर्जी, इम्यूनिटी, लो इम्यूनिटी, और जब हम हमारी प्राण शक्ति कम होती है, तभी ये हमें डिसीजेस होती है। तो सारे जो रूट कॉज है, एक मिनट कोई। मीनाक्षी, मीनाक्षी हाँ सर। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी बता दो। ओके ओके सर। हाँ, टॉक इंग्लिश ऑल्सो, ओके, ओके इंग्लिश एंड हिंदी। ओके सर। एक्चुअली एज अ नेचुरोपैथ हम लोग जो है हमारा ज्यादा हिंदी में ही होता है। और क्योंकि हमारी जो जो लैंग्वेज है वो मोस्टली हिंदी सब जगह बोली जाती है, और नेचुरोपैथी में हिंदी में ही मजा आता है सुनने में। तो सारी चीजें हम क्लियरली बोल पाते हैं। और जो थोड़ा बहुत है मैं बीच बीच में बोलती रहूंगी, तो यू कैन अंडरस्टैंड इन इंग्लिश ऑल्सो, इन हिंदी ऑल्सो, सॉरी। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा, ऑल डिसीजेस आर सेम एंड देयर कॉजेज आर सेम एंड देयर ट्रीटमेंट आर ऑल्सो सेम। तो सारे डिसीजेस नेचुरोपैथी में माने गए हैं कि दे आर सेम, बिकॉज हमारी इम्यूनिटी, द इम्यूनिटी व्हेन गेट फॉल, वी हम डिसीजेस से गिर जाते हैं, और सारे जो डिसीजेस हैं वो इसी वजह से हमको घेर लेते हैं। और इसके अलावा जो है हमारी लाइफस्टाइल और सारी जो हमारी इम्यूनिटी है वो फॉल होती है बिकॉज ऑफ जो हमारा डाइटरी है, और इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट है। लाइफ जो है हमारी इन सब चीजों से घिरी है, पोल्यूटेंट से घिरी है, एयर, जो हमारे पंच महाभूत, इससे हमारी बॉडी बनी हुई है। और ये 5 एलिमेंट्स जो है, ये इसमें वाटर एलिमेंट, यहाँ से भी कंटेमिनेशन आ रहा है, एयर एलिमेंट से कंटेमिनेशन आ रहा है, अर्थ एलिमेंट से कंटेमिनेशन आ रहा है, और आकाश तत्व जो है वो, यानी कि हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो भी हमारा कई डिसीजेस फॉर्म कर रहा है। और अग्नि जो फायर है, वो उससे भी हमारी कई डिसीजेस फॉर्म हो रही है। अब सबसे पहले जो है नेचुरोपैथी का फर्स्ट रूल है कि हमारी बॉडी जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल 80% अल्कलाइन होनी चाहिए, 20% एसिडिक होनी चाहिए। तो जब बॉडी में ये एसिड का परसेंटेज बढ़ जाता है,
तो अल्कलिटी कम होने से डिसीजेस फॉर्म होना शुरू हो जाती है। जैसे कि दो नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो है वही अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे ही जो डिसीजेस हैं वो भी अट्रैक्ट होती हैं। जब हमारी बॉडी अगर इम्यूनिटी कम है तो हमारी जो बॉडी है वो डिसीजेस को अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा जो है सेकेंड है, जर्म्स डू नॉट कॉज डिसीज। अकॉर्डिंग टू एलोपैथी जो है बताया गया है कि जर्म्स जो है वो डिसीजेस कॉज करते हैं, बट नेचुरोपैथी में जर्म्स को जो है वो पार्ट ऑफ द नेचर माना गया है। और हमारी बॉडी में जो है दो तरह के जर्म्स होते हैं, कुछ गुड बैक्टीरिया है, कुछ बैड बैक्टीरिया है। अब जब बॉडी हमारी नेचर से दूर चली जाती है, जैसे जैसे हम लाइफ को लाइफ स्टाइल हम चेंज करते हैं, हम बहुत सारा जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट कर लेते हैं बॉडी में, तो उसकी वजह से जो है हमारे नेचर से जो है हमको निगेटिव जो बैक्टीरियाज है वो आना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है, थर्ड है प्रिंसिपल, एक्यूट इलनेस इज नॉट एनिमी बट अ फ्रेंड। तो जो एक्यूट इलनेस होता है, यानी कि जब सिम्टम्स होते हैं, जब भी हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन होता है, तो कई बार जो है लूज मोशंस होते हैं, वॉमिटिंग होती है, एंड स्किन डिसीजेस होना, ये सारी चीजें जो है वो एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स के कारण होता है। तो जो एक्यूट इलनेस है, यानी कि जो सिम्टम्स है, ये हमारे ये हमारी एनिमी नहीं है, ये हमारे फ्रेंड है। एक्चुअली हम इनको सप्रेस कर देते हैं मेडिसिन खा के, आर्टिफिशियल जो सिंथेटिक मटेरियल हम डालते हैं बॉडी में, वो हमारे नेचर के खिलाफ है, दे आर फॉरेन मटेरियल, और ये फॉरेन मटेरियल ही डिसीजेस का कॉज है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है, नेचर इटसेल्फ इज अ डॉक्टर। नेचर जो है वही एक डॉक्टर है। जब भी बॉडी में इलनेस या इंफ्लेमेशन या कोई भी डिसीज फॉर्म होती है, तो नेचर से ही हमको सारी जो उसकी मेडिसिन है वो नेचर में ही अवेलेबल है। जैसे कि मड है, वाटर है। कई बार जो है जब पेशेंट्स को, जैसे फॉर एग्जांपल कई पेशेंट्स को जो लूज मोशंस हो जाते हैं या और कोई डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, तो उनको जो है वो फास्टिंग पे रखा जाता है, ताकि वो जो है सारा टॉक्सिन्स जो है वो डिजोल्व हो जाए, और सिर्फ वाटर या जो अलग अलग फ्रूट्स है, जूसेस हैं, इनके थ्रू ही उनको हील किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट इज नॉट ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीज बट ऑफ द एंटायर बॉडी ऑफ द पेशेंट। ट्रीटमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर डिसीजेस पे नहीं किया जाता है, फुल बॉडी पे किया जाता है। जब भी कोई एक इलनेस होता है, आइदर आइज का हो, नोज सेंसरी का हो, या कोई सिस्टम का भी हो, तो फुल बॉडी का किया जाता है, क्योंकि रूट कॉज जो है वो फुल बॉडी में, जैसे मान लीजिए कि कोई भी पेशेंट, छोटे छोटे जो भी सिम्टम्स आते हैं, तो उसके बाद में जो है वो एक्यूट से क्रोनिक में चले जाते हैं। एक्यूट से क्रोनिक में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो सप्रेस हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ दे आर टेकिंग लॉट्स ऑफ मेडिसिन एंड सिंथेटिक मटेरियल, और उसके साथ साथ उनका लाइफस्टाइल। तो धीरे धीरे ये डिसीजेस क्रोनिक में चेंज हो जाते हैं। और जो क्रोनिक डिसीजेस हैं, इनको क्लियर इनको हटाने के लिए बॉडी से नेचर का जो है वो हेल्प लिया जाता है। और नेचुरोपैथी में जैसे मड बाथ है, हाइड्रोथेरेपी है, इन सब की मदद से इनका क्रोनिक डिसीजेस को भी ठीक किया जाता है। उसके अलावा जो है, इट टेक्स टाइम टू क्योर अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक एलिमेंट्स। पेशेंट्स जो सफर करते हैं वो क्रोनिक एलिमेंट से नेचुरोपैथी के थ्रू जो है वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन वो कंप्लीटली हील होते हैं, एंड बाय रूट कॉज वो हील हो जाते हैं। और जब बाकी जो मेडिसिन है उनसे हमें फास्ट रिजल्ट तो मिलता है, लेकिन जो नेचुरोपैथ है वो सारा ट्रीटमेंट जो है ट्रीटमेंट करते हैं, वो थोड़ी प्रोसेस स्लो होती है, लेकिन वो रूट कॉज से क्योर करते हैं। देन एट्थ प्रिंसिपल है, सप्रेस्ड डिसीजेस कम टू सरफेस थ्रू नेचर क्योर। जो जो सप्रेस डिसीजेस है, सप्रेस डिसीजेस तो अभी काफी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो जैसे कि हमारा बहुत सारे इमोशंस भी सप्रेस होने के बाद डिसीजेस फॉर्म होते हैं। एंड ये सप्रेशन, इमोशन के सप्रेशन ही नहीं बल्कि और भी चीजें हैं, जैसे जो वेग है, शरीर के वेग जो होते हैं, जिसमें जो एक्यूमुलेशन ऑफ जितने भी टॉक्सिन्स हैं, इनको इनका जमा होना शुरू हो जाता है। और जो वेग है, जैसे कि लोग कई बार लॉन्ग टाइम तक बैठते हैं तो यूरिन रोक देते हैं, कई बार वो मोशंस को भी रोकना पड़ता है, कभी इमरजेंसी होती है।
कई बार लंबे समय तक पानी नहीं पीते हैं, और कई बार जो है ऐसे कई वेग जो है वो रोक देते हैं। तो इस वेग के रोकने के कारण ही कई रोग हो जाते हैं। और उसके अलावा जो है साइमल्टेनियसली ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल, यहाँ पर नेचुरोपैथी में जो है वो माइंड और सोल उसके साथ ही पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है, फिजिकल, मेटाफिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल लेवल पे। फिजिकल लेवल पे जो ट्रीटमेंट है वो अलग अलग मड, वाटर और जो नेचुरोपैथी में हमारे पंच महाभूत है इनसे किया जाता है। मेटाफिजिकल जो है वो मेडिटेशन और माइंड से जो भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है उससे किया जाता है। और स्पिरिचुअल लेवल पे भी काफी चीजें सॉल्व की जाती है। इसके अलावा जो है साइमल्टेनियसली ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल, नो मेडिसिन शुड बी गिवन टू पेशेंट ड्यूरिंग नेचर क्योर ट्रीटमेंट। तो नेचर क्योर ट्रीटमेंट में कोई भी मेडिसिन जो है वो नहीं दी जाती है, सिर्फ नेचर से ही इनको हील किया जाता है। तो ये सारे जो 10 प्रिंसिपल्स थे, ये हमारे नेचुरोपैथी प्रिंसिपल्स है। इसके अलावा जो है अब कॉस्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटिक एंड डर्मेटोलॉजी में जो स्किन डिसीजेस हैं, जो स्किन के इश्यूज है, उनके रूट कॉज में कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगी। तो मेन जो रूट कॉज स्किन डिसीजेस के होते हैं, ये होते हैं बॉडी में केमिकल एक्यूमुलेशन से। जो केमिकल एक्यूमुलेशन होता है फ्रॉम द फूड, जिसमें पेस्टिसाइड्स हैं, और जो अभी जो वेयर करते हैं, कपड़े जो वेयर करते हैं, सिंथेटिक मटेरियल वेयर करते हैं, उससे कई बार जो स्वेट है वो वापस हमारी बॉडी में पोर्स के थ्रू चला जाता है। तो ये जो एलिमिनेशन है यहाँ पे रुक गया। ये जो क्लीन होना था, ये जो स्वेटिंग है, ये हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करती है थ्रू द ग्लैंड्स। तो ये जो है वापस से जब बॉडी में चले जाती है, तो फिर से जो केमिकल रिएक्शन होती है, उसी से जो है वो स्किन पे आकर ये डिसीज फॉर्म करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो प्रिकॉशन लेना है उसमें ये है कि कॉटन क्लोथ्स वेयर करना है, लूज कपड़े वेयर करना है। सेकेंड थिंग जो है उसमें जो पेस्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स को हम आज क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि हर जगह पेस्टिसाइड्स है, हर फूड में पेस्टिसाइड आ रहा है। और ये पेस्टिसाइड्स को हम कोशिश करें कि ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट हो, ऑर्गेनिक चीजें सारे, कोई भी रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सॉल्ट जो है वो हमें यूज नहीं करने हैं। ये जो रिफाइंड चीजें हैं यही केमिकल बॉडी में एक्यूमुलेट होके स्किन में जो है वो डिसऑर्डर्स लाता है अलग अलग। और ये एक्सेस केमिकल जो है वो फर्टिलिटी से लेके सारे इश्यूज जो है उसपे ये सारे जो है जो फर्टिलिटी है उसमें सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। और इसी वजह से पीसीओडी और जो कई जो मेंस्ट्रुअल रिलेटेड इश्यूज हैं वो हो जाते हैं। और ईस्ट्रोजन लेवल और प्रोजेस्टेरॉन जो है वुमेन्स में जनरली इसी वजह से इम्बैलेंस हो जाता है। और ये इम्बैलेंस की वजह से कई बार जो है वो स्किन के इश्यूज होते हैं, बिकॉज हार्मोनल कई हार्मोनल रीजंस भी होते हैं जिन जो स्किन इश्यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है वो इन केमिकल्स को हम कैसे क्लियर करें, तो हमको ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स और बॉडी डिटॉक्स करते रहना चाहिए। जैसे लिवर क्लेंजिंग है, किडनी क्लेंजिंग है, अलग अलग जो ऑर्गन्स है उनका क्लींजिंग करके और हम एक अच्छे डाइट कर सकते हैं। तो कई बार जो हार्श केमिकल्स है उनको रिमूव नहीं हो पाते। तो कई बार जो पानी होता है, वाटर में भी कई पोल्यूटेंट्स जो है वो हमारे बॉडी में जाते हैं इनडायरेक्टली, और ये पोल्यूटेंट्स जो है ये भी हमारे स्किन डिसीज फॉर्म करते हैं। और अनदर कॉज है विरुद्ध आहार जो बोला जाता है, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन। रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन में जो है वो कई बार जैसे सेम तरह का प्रोटीन हम नहीं ले सकते हैं। जैसे दाल और मिल्क ये हम साथ में नहीं ले सकते हैं। ऑयल्स जो है अलग अलग ऑयल्स के साथ में भी कई बार जो है वो रिएक्शन हो जाती है। जैसे रिफाइंड ऑयल एंड जो ऑयल है, घी है, इनको कॉम्बिनेशन नहीं करना है। उसके अलावा जैसे सब्जियां हैं, कुछ कुछ रस है, आयुर्वेद में कुछ रस भी बताए गए हैं, जैसे भिंडी और करेला, इनको साथ में नहीं खाना है। तो ये जो विरुद्ध आहार है, दही के साथ में, कर्ड के साथ में जो एनिमल प्रोडक्ट एंड प्लांट प्रोडक्ट है इनको कंबाइन नहीं करना है। इन जनरल हम बोल सकते हैं कि वेगन फूड ही आप अडॉप्ट करें,
ताकि आप एक हेल्दी स्किन और हेल्दी बॉडी के साथ रहें। और जैसे ना कोकोनट मिल्क है, आलमंड मिल्क है, इनके साथ में मिल्क प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं वो भी रिएक्ट करता है। हमको कोई एक तरह का ही लेना है। इवन सीरियल्स, पल्सेस, ये भी हमको एक ही तरह का फूड लेना है। कॉम्बिनेशंस में रिएक्शंस होती हैं, और यही जो रिएक्शन है वो बॉडी में हिस्टामिन्स बनाती है, और ये हिस्टामिन्स जो है ये ही जा करके स्किन डिसीज फॉर्म करती हैं। और इनको जो है हिस्टामिन एक एसिड होता है एक्चुअली, और ये जो एसिड है ये फॉर्मिक एसिड जैसे एंड्स के जो स्टिंग है उसमें पाया जाता है। जब भी चींटी हमको काटती है या मच्छर हमको बाइट करता है तो हमारा जो स्किन है वहां से स्वेलिंग हो जाता है। स्वेलिंग होता है बिकॉज वो जो उन्होंने एसिड वहां पे इंसर्ट किया उनके जो डंक होते हैं उसके थ्रू, तो वो जो एसिड होता है वो न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक ऑइंटमेंट लगाते हैं। तो ये जो एसिड है जब लॉन्ग टाइम हमारे बॉडी में फूड से जाता रहता है तो ये हिस्टामिन्स पैदा करता है, और यही हिस्टामिन्स जो है वो स्किन डिसीजेस फॉर्म करते हैं। और अब स्किन डिसीजेस में और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन होती है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन अलग अलग अकॉर्डिंगली डिसीज क्रिएट होते हैं। जैसे कुछ डीएनए प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, कुछ जो इश्यूज हैं वो फूड से आते हैं, लाइफस्टाइल से आते हैं, कुछ एक्सपोजर से आते हैं, एयर से आते हैं, वाटर से आते हैं, और लॉन्ग टर्म जो है वो स्ट्रेस से भी कई बार ये डिसीजेस बढ़ती जाती है। तो नेचुरोपैथी में स्किन डिसीजेस के लिए अलग अलग अकॉर्डिंगली जो है वो चार्ज वाटर अलग अलग दिए जाते हैं। जैसे ब्लू एंड ग्रीन बॉटल में चार्ज वाटर बना करके 50 ml के अबाउट दिन में 8 से 10 बार उनको पिलाया जाता है पेशेंट को। लगभग ये कॉमन प्रोटोकॉल है, और मैं कॉमन प्रोटोकॉल ही बता रही हूँ। और फूड में जो है वो विटामिन ई, विटामिन सी, इनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और जो स्किन के अलग अलग स्किन के जो पेशेंट्स हैं उनके स्टेज वाइज जो है वो प्रोटोकॉल डिसाइड किया जाता है। सबसे पहले रूट कॉज से उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक किया जाता है, क्योंकि जो कॉन्स्टिपेटेड पर्सन है उन्हीं को जो है कॉन्स्टिपेशन, आप सभी को पता होगा। जो कॉन्स्टिपेशन है उसमें स्टूल्स का जो है वो ड्राई होना या मोशन प्रॉपर नहीं होना, जिनको गैसेस या ब्लोटिंग्स होती है, या समझ लीजिए बॉडी में कहीं ना कहीं पेन्स हो रहे हैं, तो ये होते हैं बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये नहीं कि जो कॉन्स्टिपेशन है अगर मोशन नहीं हो रहा है तो वो जो फूड है वो सारा अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जा रहा है, कोई जॉइंट में जा रहा है, कोई किडनी में जा रहा है। अलग अलग अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसी को डाइजेशन करने के बाद ही जो है हमारा जो पूरा बॉडी वो डाइजेस्टिबल माना जाता है। तो ये जो डाइजेशन नॉर्मलाइज करने के लिए जो है 21 डेज का एनिमा भी दिया जाता है। अलग अलग एनिमा अलग अलग डिसीज वाइज यूज किए जाते हैं। जैसे लेमन एंड वार्म वाटर का एनिमा दिया जाता है 21 डेज। और अलग जो जिनके क्रोनिक डिसीजेस है जैसे सोरियासिस वगैरह, तो ये जो क्रोनिक डिसीजेस है इनमें नीम का एनिमा दिया जाता है, स्पेशली नीम जूस का अबाउट 50 to 60 ml। और उसके अलावा जो है अप्लाई भी किया जाता है फुल बॉडी में। जो मड होती है उसको, मड जो है वो अबाउट 4 फीट नीचे की मड यूज की जाती है। मड में जो है वो नीम जूस ऐड करके और उसको पूरे बॉडी पे जहां जहां पे लोकल पार्ट है, जहां पे डिसीज पार्ट है, वहां पे अप्लाई किया जाता है। उसके अलावा जो है वो डाइट थेरेपी रखी जाती है। डाइट थेरेपी में जूसेस, जो डिफरेंट जो वेजिटेबल जूसेस है जैसे कैप्सिकम, ब्रोकोली और कैबेज, अनार, ये जूसेस जो है वो दिए जाते हैं। और उसके अलावा जो है फास्टिंग भी रखी जाती, फास्टिंग भी करवाई जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है स्किन डिसीज में फास्टिंग इफेक्ट करती है। और ये फास्टिंग जो है वो 3 डेज फास्टिंग, देन 5 डेज फास्टिंग, ऐसे करके धीरे धीरे पेशेंट को एक लॉन्ग टर्म फास्टिंग में डाला जाता है अकॉर्डिंग टू डिसीज स्टेज के अनुसार। उसके अलावा जो स्किन डिसीज है उसमें जो मेलानिन का है, मेलानिन का प्रोडक्शन कई बार जो अप एंड डाउन हो जाता है। जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन जो है उसके इनबैलेंस के कारण, मैंने बताया था हार्मोनल इनबैलेंस के कारण कई बार जो है
वो जैसे मेलाज्मा है, पिगमेंटेशन है, ये जनरली वुमेन्स में देखा जा रहा है, और कई मेल्स में भी ये पिगमेंटेशन देखा जा रहा है। तो इसका मेन रूट कॉज है जो फर्टिलाइजर्स है वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं। और क्योंकि मैंने बताया था कि फर्टिलिटी जो है, फर्टिलिटी अफेक्ट हो रही है। अभी एक एग्जांपल बताना चाहूंगी कि जो पॉन्ड्स है, पॉन्ड्स में जो फ्रॉग्स हैं, वो उसमें क्योंकि जो खेतों का पानी है, जो वहां पे इतना ज्यादा फर्टिलाइजर यूज हो रहा है कि वो खेतों का पानी जो है वो पॉन्ड तक आ रहा है। और इस पॉन्ड में जो है, वो जो फ्रॉग्स है, वो जो मेल फ्रॉग्स है वो फीमेल में कन्वर्ट हो रहे हैं, और कई फीमेल फ्रॉग्स है जो वो मेल में कन्वर्ट हो रही है। ऐसे ही ह्यूमन बीइंग में देखा जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ जो एक्सेस फर्टिलाइजर है। तो ये एक्सेस फर्टिलाइजर जब हमारे हॉर्मोन्स को इनबैलेंस करता है, तो ये हार्मोनल इनबैलेंस के कारण होने वाली जो स्किन डिसीजेस है, इसमें पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, और जो मेलाज्मा, ल्यूकोडर्मा, ऐसी कई डिसीजेस जो है वो देखी जा रही है। अ, थोड़ा पॉज लेना चाहूंगी मैं। अ, सभी से मैं एक क्वेश्चन करूंगी कि बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, और क्या सभी को समझ में आ रहा है मैं जो बता रही हूँ? चैट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, थैंक यू मनोज सर। जरा स्लो, स्लो, थोड़ा सा स्लो करो, स्लो बोलो। हाँ हाँ। ओके। ओके। तो जो अब डिफरेंट डिसीजेस पे हम बात करेंगे, डिफरेंट डिसीजेस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है, अ, जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो मैं डिसीज डिस्कस करूंगी वो है लिप्रेसी। लिप्रेसी जो है, ये पहले फिंगर्स में आती है, हैंड्स में आती है, और धीरे धीरे जो है, इट बिकम जब हाथ स्टिफ हो जाते हैं, स्टिफ होने के बाद में ये बोन्स तक के सारा जो है, ये डिफॉर्मिटी शुरू होना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा जो है, जब ये डिसीज स्प्रेड होना शुरू हो जाती है बोन्स तक के, तो जो फिंगर्स हैं वो भी डिफॉर्म होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है ऐसे डिसीजेस के लिए, जो जैसे लिप्रेसी है, ऐसे डिसीजेस के लिए नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। तो बहुत सारे अलग अलग एनिमा, और इनको फास्टिंग पे रखा जाता है, इनको मड का ट्रीटमेंट दिया जाता है, ब्लू एंड ग्रीन चार्ज वाटर दिया जाता है, ग्रीन चार्ज ऑयल भी अप्लाई किया जाता है बॉडी पार्ट्स में, और ग्रीन जो जूसेस है जैसे कि व्हीट ग्रास जूस और वेजिटेबल जूस, जैसे मैंने बताया व्हीट ग्रास जूस, इस पे रखा जाता है। कैंसर पेशेंट्स को भी लॉन्ग टाइम तक इन्हीं जूसेस पे रखा जाता है। जिनको स्किन कैंसर है उनको भी इन्हीं जूसेस पे रखा जाता है। तो सबसे ज्यादा स्किन डिसीजेस में इफेक्टिव ट्रीटमेंट है नेचुरोपैथी में फास्टिंग, क्योंकि फास्टिंग जो है वो आकाश तत्व से रिलेटेड है। और जब अ, आकाश तत्व जो होता है वो एम्प्टी पार्ट होता है, हमारे बॉडी का एम्प्टी पार्ट। जब बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है, मैंने बताया था एसिडिक मीन्स 20% हमारा पार्ट जो है वो बॉडी का एसिडिक रहना चाहिए, और रिमेनिंग पार्ट जो है वो अल्कलाइन रहना चाहिए। बट हमारा जो लाइफस्टाइल है, जैसे हम लोग जिस तरह का फूड खाते हैं, हम लोग कुक फूड खाते हैं, पूरा फुल मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक के जो है हमारा फूड पैटर्न जो है इस तरह का है। रॉ फूड हम एक स्मॉल पार्ट में खाते हैं, और कुक फूड जो है हम एक बिग पार्ट में, लार्ज पार्ट में खाते हैं। तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न से हमारी बॉडी एसिडिक होती चली जाती है। जब एक न्यू बॉर्न, जब हम एक ह्यूमन जो है न्यू बॉर्न जब होते हैं, तब उनके बॉडी में कोई डिसीजेस नहीं होती, क्योंकि वो एक
जब वो जन्म लेते हैं तो एक हेल्दी बॉडी के साथ जन्म लेते हैं। जब वो जैसे लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने लग जाते हैं, जो भी उनका बाहर का जो भी खाना शुरू हो जाता है अननेचुरल फूड, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो सेल्स डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। और इसी वजह से जो है ये एजिंग प्रोसेस जो है वो बढ़ जाती है। और अब जो स्किन में जो एजिंग प्रोसेस है उसको लेकर भी मैं एक कुछ बताना चाहूंगी कि जो एजिंग प्रोसेस है इसके लिए जो है हमारे सेल्स जो है वो ऑक्साइड होते चले जाते हैं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस फास्ट हो जाती है, इस वजह से एजिंग शुरू हो जाती है। तो ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है इसको हम एक हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे डाइट में जो है हम पेप्टाइड्स ऐड कर सकते हैं, जो आफ्टर 20 ईयर्स हमारा प्रोटीन पेप्टाइड है, कोलेजन प्रोटीन पेप्टाइड, जो कि बायोटीन है, और ये बनना हमारा नेचुरली बंद हो जाता है और हम फूड से ही इसको लेते हैं। तो हम जिस तरह का फूड लेते हैं तो उसमें कई बार ये चीजें बॉडी में इतने अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो पाती, क्योंकि इसके साथ हम कॉम्बिनेशन में बहुत सारे टॉक्सिन्स को भी एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं। तो जब हम नेचुरल फूड पर रहते हैं, 80% मैंने बताया अल्कलाइन, तो इसमें जो है हम एक जैसे डिटॉक्स करने के लिए जो सबसे बेस्ट जूस होता है एशगार्ड जूस। तो एशगार्ड जूस में आपको कई तरह के मिनरल्स और कई एंटी न्यूट्रिएंट्स, कई न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिल जाएंगे, और कई एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें होते हैं, जिससे ये पूरा बॉडी क्लिनजिंग करता है। और इसके अलावा जो कई गुड ऑयल्स होते हैं, ये भी हमारे बॉडी में ओमेगास जो है उसकी जिसकी जरूरत होती है, जिसके कारण ओमेगास जो है हमारी बॉडी में ये कई ऑयल्स जो है उससे हमारी रिफिलिंग होती है। ओमेगास में ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 ये फैटी एसिड्स हैं, और ये फैटी एसिड्स जो है ये टॉक्सिन्स को भी जो है वो रिलीज करते, टॉक्सिन्स को उसके एक्यूमुलेट करके और फिर बॉडी से स्वेट के थ्रू रिलीज करते हैं। और इसीलिए हमको एक गुड फैट की जरूरत पड़ती है, जो हमारा ब्लड ग्रुप में, ब्लड रिपोर्ट में एचडीएल एलडीएल होता है, उसमें जो एचडीएल है ये हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है, और ये हमेशा हमारा बढ़ा हुआ रहना चाहिए, जो नॉर्मल लेवल है उसका वो सही रहना चाहिए। और एलडीएल हमारा लो रहना चाहिए। एलडीएल एक ट्रांस फैट है जो जनरेट होता है जो फ्राइड फूड और अलग अलग जो जंक फूड है वो खाने से। और ये सब जब फूड जब जाता है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस बढ़ जाती है। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो हेल्प करता है स्किन में, स्किन की जो स्किन का जो ग्लो है वो भी ऑयल से ही आता है। और ये जो गुड ऑयल्स है ये हमको नट से मिलते हैं, अलग अलग ओमेगास सीड से मिलते हैं, और इवन हॉर्मोन्स भी बैलेंस करने के लिए हमको ये लेने सीड्स जो है ये बहुत नेसेसरी है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट में एक डिसीजेस पे बताना चाहूंगी, एक्जिमा। एक्जिमा एक कॉमन डिसीज है जो ड्राइनेस, एक ड्राई वाला होता है और एक वेट वाला होता है। और रॉ एंड वेजिटेबल देन जूस। कोई क्वेश्चन किया है एक बार, मुझे दिख नहीं रहा है चैट बॉक्स में। सर इनको अनम्यूट कर दीजिए अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो। You can raise the hand if you have queries. हैंड रेस कीजिए। ओके, सुमिता जी, हाँ ओके सुमिता, आई अनम्यूटेड यू। थैंक यू सर। हाँ मैम बोलिए। आपने बताया था कि फ्रूट जूसेस, स्पेसिफिक फ्रूट जूसेस या स्पेसिफिक वेजिटेबल जूसेस, जैसे आपने बोला एश गॉड का जूस पीना वेरी गुड है डिटॉक्स के लिए, एंड टू एंश्योर दैट स्टमक का प्रॉब्लम्स जो भी है
ऐश गॉड ऐसा नहीं खा सकते कच्चा वाला. And the question is, instead of taking juices, is it not better to eat raw vegetable or fruit? नहीं, आप खा भी सकते हैं, अगर जनरली लोग रॉ खाते नहीं है, लेकिन ये हम्म. जूस के फॉर्म में इसलिए बोला गया है क्योंकि मॉर्निंग में जो है हम जब इसको एक जूस के फॉर्म में लेते हैं तो एक बल्क क्वांटिटी में हमारे जाता है अकॉर्डिंगली. जैसे किसी को डिटॉक्स करना है, जिसकी बॉडी बहुत ज्यादा टॉक्सिन से एक्यूमुलेट हो चुकी है, उनको जो है वो एक ग्लास जूस होता है अबाउट 250 ग्राम्स ऑफ एशगार्ड, और इतना जो है वो कई बार वो खा नहीं पाते हैं, तो इसीलिए हम एक जूस में उनको देते हैं, जूस के फॉर्म में इसलिए दिया जाता है. इन जनरल जो है वो फ्रूट्स का जूसेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जीभ में रस रहते हैं, वो जीभ में रस जो है वो धीरे धीरे जब हम खाते हैं, चबाते हैं, तो वो ज्यादा फास्ट काम करते हैं, और वो जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो उस तरह से फॉर्म होते हैं ताकि वो उसमें अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो सके. और जब जूसेस हम लेते हैं कई बार, तो जैसे खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल हमको मॉर्निंग में लेने चाहिए, और उसके अलावा उसके साथ हमको खट्टे मीठे ऐसे कॉम्बिनेशन में हमको नहीं लेना चाहिए. उसका रीजन है कि नेचुरोपैथी में यही बताया गया है कि एक समय में हमको एक ही फल का सेवन करना चाहिए. तो जैसे मॉर्निंग में मैंने बताया, सिट्रस फ्रूट अगर लेते हैं तो वो बहुत अच्छे डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है, और फ्रूट का जूस अगर हम लेते हैं तो कई बार वो एसिडिक हो जाता है, क्योंकि उतने हम फ्रूट नहीं खा सकते. मान लीजिए हमने एक ग्लास जूस लिया जिसमें 10 संतरों का जूस था, तो उतने संतरे तो हम खा नहीं सकते, उतने ऑरेंजेस हम नहीं खा सकते. इसके लिए जो है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे अब्जॉर्ब होने के लिए हमें खाना ज्यादा बेटर है. Okay, Dr. Radha, she is want to ask something. Dr. Radha, I unmuted you. हेलो. हाँ. हेलो. या थैंक यू सो मच, आपने बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दिया. मुझे कुछ डाउट्स है, लाइक जी बोलिए. स्पेशली नेचुरोपैथी में सिर्फ टॉक्सिन से ही काम, पूरा काम जो प्रिंसिपल है आम पे ही मैक्सिमम डिपेंडेड है कि बॉडी में जो भी डिजीज है इन द 10 प्रिंसिपल्स इट्स बेस्ड ऑन द टॉक्सिन्स. लाइक यस यस. now you mentioned that dal and methi, if we are preparing together, हम्म. now most of the time ऐसा होता है कि they prepare, I mean I prepare methi separately, dal separately and mix it. Is it possible and is it okay in that way, or is it also, I mean, not acceptable? देखिए, जो प्लांट प्रोडक्ट्स है, प्लांट प्रोडक्ट्स को जो है हम, जैसे मैंने बताया कि आप फूड को जो साथ में ले रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू बॉडी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी, जो जैसे हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, वात, पित्त और कफ, तो सभी के लिए अलग होता है, सभी के लिए सभी का डाइजेस्टिव सिस्टम भी अलग होता है. तो अकॉर्डिंगली Okay. अगर पित्त, हाँ, अगर पित्त बॉडी है तो दे कैन डाइजेस्ट, और Hmm. यदि, हाँ, यदि कफत बॉडी है तो उनको जो है वो दाल में भी चूज करना है कि जो लाइट होती है खाने में, डाइजेस्ट करने में, जैसे मूंग दाल होती है, मूंग दाल को कंबाइन कर सकते हैं. हाँ. Okay. यस. एंड रेगुलरली अगर डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं तो दैट इज फाइन, राइट? जैसे एवरी 15 days. हाँ हाँ, एवरी 15 डेज में यदि आप अकॉर्डिंगली कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, अगर आप रेगुलरली फूड जो है वो हेल्दी खाते हैं, तो आपको इवन 21 डेज में भी अगर आप डिटॉक्स करते हैं तो भी सफिशिएंट है. ओके. जरूरी, हाँ, जरूरी नहीं है कि 15 डेज में करिए. बस आप जो रेगुलरली, जैसे मान लीजिए आपने वीक में एक बार जो है वो फास्ट फूड, जो भी जंक फूड खा लिया या जो भी खा लिया, इट्स ओके. कि बॉडी में भी जो है उस तरह के डाइजेस्टिव जूसेस फॉर्म होते हैं. जब हम बाहर का फूड भी खाते हैं तो हमारी डाइजेस्टिव कैपेसिटी जो है वो हमको तभी समझ में आती है. अगर वो हमको डिसीज फॉर्म करे, इसका मतलब कि टॉक्सिन एक्यूमुलेशन ज्यादा है. अगर ओके. एक बार भी हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, जैसे कई लोग बाहर पानी पूरी खा लेते हैं या जो भी है जंक फूड खा लेते हैं, और वो उनको डाइजेस्ट नहीं होता है, तो समझ लीजिए कि उनका जो है
वो टॉक्सिन एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा है और उनको एवरी 15 डेज में डिटॉक्स करने की जरूरत है। ओके, थैंक यू। ओके Okay, carry on. जी जी, नेचुरोपैथी में जो है इवन स्किन ही नहीं, अभी स्किन जो है उसको मैं कॉमनली मतलब स्किन भी एक कॉमन में ही आ गया। सारे जो डिसीजेस है उसको लेकर ही जो नेचुरोपैथी में बेसिक्स ही यूज करते हैं, चाहे वो स्किन डिसीज हो या कोई भी डिसीज हो या पेन मैनेजमेंट हो, कोई भी डिसीजेस हो। तो ये सब में जो है, देखिए जो सबसे मेन है हमारे एक्यूमुलेशन ऑफ हिस्टामिन्स। हिस्टामिन्स को हम एक्यूमुलेट ना होने दे, और जिसमें जो विरुद्ध आहार होते हैं इनको साथ में ना ले, ऋतुचर्या के हिसाब से चले, यानी कि जैसे जो सीजनल होता है, सीजनल, रीजनल एंड ओरिजिनल, मीन्स जो सीजनल होता है वही हम अडॉप्ट करें, क्योंकि जो नॉन सीजनल चीजें हैं उसमें बहुत ज्यादा एक्सेस फर्टिलाइजर डाला जाता है, इसीलिए ये हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा करता है। उसके अलावा रीजनल होना चाहिए, यानी कि हमारा लोकल ही होना चाहिए। जैसे जनरली लोग एप्पल खाते हैं जो कि शिमला से आता है, बहुत दूर दूर से आता है, वहाँ की वहाँ के जो बॉडी है, लोग जो है उनको उस तरह की जरूरत है, जिससे वो हैवी वर्क जो उनको चढ़ना होता है, सारी चीजें होती है, इसलिए क्योंकि उसमें सुक्रोज ज्यादा होता है और वो बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल बढ़ाता है। और हम लोग, हमारे यहाँ का जो लोकल फ्रूट है जो भी है, जैसे हम महाराष्ट्र में है तो जाम है, सीताफल है, बेर है, ये सब जैसे बेरीज लोग खा रहे हैं। ऑनलाइन कितनी सारी चीजें आ रही है जिसमें बेरीज है, ब्लूबेरीज है, चेरीज है, ब्लैक क्रैनबेरीज है। तो ये सब जो है हमारे यहाँ जो लोकल बेरी जो बेर होते हैं, इनमें भी हाई विटामिन सी पाया जाता है और हमारे लिए वही होता है, वो बेस्ट होता है। उसके अलावा जो ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल मतलब नेचुरल, जो हम फूड होता है उसको तोड़ मरोड़ के खाते हैं, यानी कि हम उसको मिर्च मसाला फ्राई करके या जो भी हम इस तरह से उसको, जब उसमें टॉक्सिन का एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है, जब हम उसको नेचुरल से इस फॉर्म में कुक करके खाते हैं। अब कुकिंग के बाद भी कई बार ऐसा हो रहा है कि लोग उसको भी फ्रिज में रख के देन वापस से नेक्स्ट डे फिर से उसको निकाल के गर्म करके जनरली खा रहे हैं। ये और ज्यादा जो है बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा करता है। तो जनरली हमको जो फूड है वो 3 घंटे के अंदर ही बना करके फ्रेश हमको फूड लेना चाहिए। और उसके अलावा जो है नेचर से हमें जुड़े रहना चाहिए, मॉर्निंग की धूप जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि विटामिन डी जो है वो हमारा विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये 4 विटामिन जो है ये हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन है, स्टोर्ड फॉर्म में रहता है और हर बार हमको प्रोटेक्शन देता है। इसके लिए हमको धूप जरूर लेनी चाहिए, और बेयर फुट हमको चलना चाहिए, ताकि हमको अर्थ एलिमेंट का जो है वो अर्थ एलिमेंट हमको मिले। और अर्थ एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे हमको बेयर फुट चलना चाहिए, घास पे चलना चाहिए मॉर्निंग में। और इसके अलावा जो है, जैसे कई अभी हम अर्थ एलिमेंट्स जो जिनका बढ़ा हुआ है या कम है, तो हम उसमें योग के माध्यम से भी कम करते हैं। जैसे मुद्रा होती है, मुद्राएं हैं, जैसे पृथ्वी मुद्रा है, पृथ्वी मुद्रा ये वाली मुद्रा होती है, सॉरी ये वाली मुद्रा होती है। और जनरली जो वेट लॉस करना है, जिनको वेट लॉस के लिए मुद्राएं अलग अलग करनी चाहिए, वो ये अर्थ एलिमेंट उनको कम करने के लिए ये वाली मुद्रा है। और ये वाली वायु मुद्रा है, अगर वायु बढ़ा हुआ है तो वायु मुद्रा है। ये आकाश है, वायु, आकाश, ये पृथ्वी, जल, और ये अग्नि है। तो जब भी हमको हमारी डाइजेशन कम होती है तो अग्नि बढ़ाने के लिए ये हम यहाँ पे टच करना है फिंगर्स को। जैसे हमने इसको टच किया तो हमने ये अग्नि बढ़ा दी, और ये वायु भी बढ़ा दी, ये बढ़ाना हो गया। और ये जब हम इसको लॉक करते हैं तो ये वायु कम हो गई। ऐसे ही आकाश तत्व जो है वो उसकी हमने अग्नि के थ्रू ये यहाँ पे इसको कनेक्ट किया, और ये इस तरह से ये मुद्राएं होती है। पृथ्वी को हमको ये बैलेंसिंग है, ये जो सारा है टिप्स पे टच करते हैं, ये बैलेंसिंग है। और जब इसको हम लॉक करते हैं तो ये रिड्यूसिंग है। जैसे हमारा अर्थ एलिमेंट बढ़ा हुआ है, अगर हमारा वेट बढ़ा हुआ है तो हम इसको लॉक करेंगे इस तरह से। ये जो अग्नि है ये बढ़ रही है और ये कम हो रहा है, ये उसका मैकेनिज्म इस तरह का है। तो ये जो मुद्राएं हैं ये बहुत हेल्प करती है। और उसके अलावा जो है पंच महाभूत में अग्नि जो है, अग्नि के लिए मैंने बताया था कि एक हम योग करते हैं
जिसमें मुंह खोल करके जब हम सांस छोड़ते हैं तो एसिड हमारे बॉडी का रिलीज होता है। जो अग्नि है, जो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, जिसकी अग्नि ज्यादा है उनको एसिडिटी ज्यादा होती है, तो वो उनको रिलीज कर सकते हैं। जैसे हमने सांस ली, जब हम मुंह खोल करके इसको रिलीज करते हैं तो एसिड्स हमारे रिलीज होते हैं और बॉडी अल्कलाइन होती है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है, अब और कोई क्वेश्चन हो तो कोई पूछ सकते हैं। मुझे अभी बहुत सारी चीजें डिस्कस कर करके अभी याद नहीं आ रहा है। आप लोग पूछ सकते हैं तो मैं आपके आंसर्स दे सकती हूँ। So now we are open for the queries. So anybody ask, please raise your hand. So we are taking practical, some practical on the फोर naturopathy. विटामिन, हाँ, फोर विटामिन, फोर विटामिन जो है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। Okay, come on, be active and ask your queries. Be active and ask your queries. Curious होना चाहिए। आपके मन में सवाल होने चाहिए तो आप और बहुत सीखेंगे। चलिए ठीक है, मैं ही आगे बढ़ाती हूँ। ओके तो एक हाँ, एक ब्यूटीफुल स्किन के लिए हमको क्या करना चाहिए, जैसे कि हमारा टॉपिक स्किन का है, तो ब्यूटीफुल स्किन के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। तो ब्यूटीफुल स्किन के लिए जो हमारा साइकिल है, जो बायोलॉजिकल साइकिल है, हमको उसको सबसे पहले सही करना है। मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग हमको उठना है। और उठने के बाद जो हमारा जो फेस होता है, सबसे पहले तो पानी हमें अच्छा पीना है। अबाउट 20 पे हमको 1 लीटर पानी पीना है। जितना भी जिनका वेट है, जैसे मान लीजिए किसी का 40 kg वेट है, तो उनको 2 लीटर पानी पीना है। तो एवरी 20 kg में 1 लीटर पानी हमको पीना चाहिए। और ये जो पानी है आप डिफरेंट फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे कोकोनट वाटर है, कुकुम्बर वाटर है, जिससे बॉडी अल्कलाइन होगी, तो आप अल्कलाइन वाटर बना सकते हैं। जिनके हार्ट इश्यूज है, जिनका बीपी हाई है, वो दालचीनी का पानी बनाकर भी वो पानी दिन भर पी सकते हैं। और जो जिनको शुगर है, डायबिटीज है, वो पेशेंट्स भी ये दालचीनी का पानी लेते रहेंगे, तो उनकी जो है शुगर काफी कंट्रोल रहती है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो है, वो मॉर्निंग में आपको जो है आइस वाटर बात करना है अपने फेस पे। कोशिश करिए कि एक पूरा आइस वाटर में आप सांस अंदर लेकर के और उस बाउल में अपने फेस को डिप करिए। तो यहाँ जितना जितना ब्लड सर्कुलेशन होगा, उतना जो है वो हमारी स्किन टोन होगी। उसके अलावा जो है हमको जो पैराबीन और जो केमिकल्स, जो क्रीम्स और जो हम सिरम्स अलग अलग जो यूज करते हैं, इनको हमको डर्मेटोलॉजी से चेक करके ही यूज करना चाहिए। क्योंकि अलग अलग स्किन के अकॉर्डिंगली जो स्किन इश्यूज होते हैं, कई बार ये क्रीम्स और जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से हमको होते हैं। नेक्स्ट, उसके अलावा जो है, नेक्स्ट हमारा रूटीन होना चाहिए कि हमको डेली हमारे वेट के इतना जो है, जैसे हमारा 40 kg अगर वेट है, तो अबाउट 400 ग्राम्स हमको फ्रूट खाना चाहिए। फ्रूट या रॉ साथ में जो मिला करके है, एक रॉ पूरा मटेरियल हमको 400 ग्राम्स लेना है। और
जब हम रॉ फूड खाते हैं तो एक 15 मिनट का गैप दीजिए, उसके बाद ही आप अपना फूड खाइए। और इसके अलावा जो है डेली जो है हमको एयर बाथ लेना है, ऑक्सीजन जितना हो सके हमारे एयरेशन में हमको रहना है। जैसे हम बंद कमरे में रहते हैं, जनरली लोग एसी में रहते हैं, तो एक जो एसी में भी एक ह्यूमिडिफायर होना चाहिए, जो ह्यूमिडिफायर से जो है हमारी स्किन जो है वो ड्राई नहीं होती है। तो आप एक कमरे में वो रखें। उसके अलावा एयर बाथ जरूर लें, जो मॉर्निंग की जो एयर होती है वो बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा अलग अलग जो बायोटीन फूड है, बायोटीन फूड में जो है हमारा कैरेट है, स्पिनच है, ग्रीन्स, जितना ग्रीन्स है उसमें भी काफी बहुत सारे अमाउंट में जो है वो बीटा कैरोटीन और बायोटीन होते हैं, जो पेप्टाइड्स हमको लगते हैं, 1 to 10 पेप्टाइड्स होते हैं। और ये अलग अलग पेप्टाइड्स हमारे बॉडी में कोलेजन बूस्ट करते हैं। कोलेजन वो होता है जो स्किन इलास्टिसिटी को टोन रखता है। तो ये जो है कोलेजन के लिए हमको हिबिस्कस टी, अलग अलग हर्बल टीज भी हम ले सकते हैं, जैसे हिबिस्कस टी है, ब्लू पी फ्लावर टी है, कैमोमाइल टी है। ये अलग अलग टीज लेने से हम जो है हमको एक साउंड स्लीप भी आती है और हमारा डाइजेशन भी अच्छा होता है। और क्योंकि कुछ चीजें डायरूटिक है, जैसे हिबिस्कस टी डायरूटिक होती है, तो ये वाटर के थ्रू वाटर मेटाबॉलिज्म को सही करके और वो क्लिनजिंग करती है। नारियल पानी डायरूटिक है, कोरिएंडर डायरूटिक है। तो ये जो चीजें हैं हमको बीच बीच में लेते रहने से हमारा वाटर के थ्रू सारा टॉक्सिन्स रिलीज हो जाता है। तो जितना हम फ्रिक्वेंटली पानी पीते हैं उतनी हमारी यूरिन सही हो जाती है, क्लियर हो जाती है। आप यूरिन से भी चेक कर सकते हैं, कई बार यूरिन के कलर से आप चेक कर सकते हैं कि आपके बॉडी में पानी कम हुआ है। और ये जो पानी है ये सेल्स में भी, हमारे साइटोप्लाज्म में जो है वो उसको प्रॉपरली, साइटोप्लाज्म में जितने छोटे ऑर्गेनिल्स होते हैं इनको फंक्शन करने में पानी ही, वाटर ही जो है वो हमारी हेल्प करता है। और इसके अलावा जो है फूड में हमको कुछ दालें हैं, जैसे मसूर दाल। मसूर दाल में सबसे ज्यादा जो है वो कोलेजन पाया जाता है। और ये ग्लूटाथायोन भी सुना होगा आपने, जो स्किन को एक ग्लो देता है, स्किन की फेयरनेस बढ़ाता है। वैसे स्किन जो है वो जनरली जो डीएनए में रहता है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसी में ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करता है। और लेकिन फिर भी एक जो हेल्दी लाइफस्टाइल, और जैसे हम सन एक्सपोजर से बचे और जो पोल्यूटेंट्स है इनसे बचे, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड, इसके बाद में हमारी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करती है। और इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक साउंड स्लीप ये भी होनी चाहिए। तो यही सब से, और जो है हमारी हेल्दी स्किन और हमारी बॉडी भी हेल्दी रह सकती है। अच्छा, हम कितना टाइम तक सन बाथ ले सकते हैं? एक क्यूरीज है, सन हाँ, बाथ। सनबाथ जो है वो हमको डेली 1 घंटा लेना चाहिए। मॉर्निंग 1 घंटा, मॉर्निंग की जो होती है वो लाइट धूप होती है, और ये हम 1 घंटा ले सकते हैं। उसके अलावा हम 2 बजे की धूप भी ले सकते हैं अकॉर्डिंगली। अगर पेशेंट को विटामिन डी की कमी है, पेशेंट के बॉडी में अगर पेन है, तो उनको थोड़ा स्ट्रांग धूप लेनी है, और वो 1.5 से 2 घंटा भी धूप में ले सकते हैं। लेकिन उनको एक क्लॉथ, कपड़ा डाल के लेना है। डायरेक्टली स्किन पे अगर धूप लेते हैं तो ओनली 20 मिनट्स ही लेना है। हाँ, और एक क्यूरीज है, अगर हम करी बनाते हैं टोमेटो का, तो हम्म। उसमें का सीड खाना चाहिए क्या? टोमेटो सीड, टोमेटो सीड। तो मैं, हाँ, टोमेटो सीड्स जो है वो इन जनरल ऐसा कुछ नहीं है, नेचर में जो पूरा फ्रूट दिया है वो हम सारा का सारा खा सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आपके दांत उसको चबाकर अच्छी तरह से फाइन जो है वो उसको खाना चाहिए, उस तभी वो डाइजेस्ट होता है। अदरवाइज अगर आप फास्ट खाएंगे तो वो आपको नुकसान करेगा। तो जितने भी सीड्स होते हैं इनको हमको प्रॉपरली च्यू करके खाना चाहिए। ऐसे भी हमको जितना हम चबाएंगे उतना हमारा डाइजेशन अच्छा होगा। और कई बार ये मिथ है, कई लोग बोलते हैं कि किडनी में प्रॉब्लम होती है या कुछ, जिनका ऑलरेडी किडनी में एक्यूमुलेशन है, ये कैल्शियम ऑक्सैलेट्स जमा हो रहे हैं, उन लोगों को ये अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जो सीड्स है उसमें भी हैवी मेटल होता है, उनको स्पिनच भी मना किया जाता है। जितने भी हैवी मेटल्स है वो वहीं पे जाके डिपॉजिट होते हैं, और इसीलिए
उनको अवॉइड करना चाहिए, जो जिनको किडनी इश्यूज है। ओके, अच्छा, और किसको कुछ क्यूरीज है? आप ना हाथ उठाइए, रेज द हैंड। सो एनीबडी हैव क्यूरीज? कुछ सवाल होने चाहिए आपको इतना सारा नॉलेज सुनने के बाद। डॉक्टर उमा ने हैंड रेज किया है। ओके ओके, डॉक्टर उमा ने हाथ रेज किया है ना? ओके, डॉक्टर उमा, ओके, यू आर अनम्यूटेड। डॉक्टर उमा। Good evening, ma'am. हाँ, गुड इवनिंग मैम, बोलिए। I wanted to ask, like the whole day's routine, can you tell us a meal plan or the juices or anything for the whole day? या श्योर मैम। A dietary plan for the whole day, how we should take. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल की जो डाइटरी प्लान होता है वो अकॉर्डिंग टू सीजन होता है। अभी जैसे रेनी सीजन चल रहा है तो इस समय में जो डाइट है आपका बिल्कुल लाइट होना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन फायर कम रहती है। और स्पेशली अगर पेशेंट्स डायबिटिक है या और भी कोई क्रोनिक डिसीजेस से अगर सफर कर रहे हैं तो उनको बहुत ही लाइट डाइट लेना है अकॉर्डिंगली। और विटामिन सी सबसे ज्यादा लेना है। और जो बेल वाले फल, जो बेल वाली जो वेजिटेबल्स है वो ज्यादा खानी है। जैसे मॉर्निंग रूटीन में वो एक वार्म वाटर ले सकते हैं जिसमें अजवाइन, जीरा और सौंफ जो है, ये एक अल्कलाइन वाटर है। इसको बॉईल करके अगर आप लेंगे तो आपको ये इस बरसात में ये एक अल्कलाइन वाटर बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि जो रॉ जूस होता है जनरली इस समय में अवॉइड किया जाता है, जो जनरली बैक्टीरियाज और ये इसमें इस समय एक्टिव होते हैं। और एंटी न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा इनमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जैसे कि जो जमीन के नीचे वाले कंद है, स्पेशली जैसे बीट रूट है, कैरेट है, ये चीजें नहीं खानी है। और जो बेल वाले जो हैं वो ज्यादा खाने हैं। जो बेल वाले जो होते हैं जैसे बॉटल गार्ड है, रीड गार्ड है, बिटर गार्ड है, ये परवल है, क्रीपर्स में जो होते हैं। हाँ हाँ, क्रीपर्स में जो होते हैं ये ज्यादा खाने हैं। और अवॉइड करना है आपको जो बैंगन है, कैप्सिकम है, ये अवॉइड करना है। इनमें जनरली कीड़े रहते हैं इसलिए इनको अवॉइड किया जाता है। और उसके अलावा जो है आप हल्की में दाल में भी आपको लाइट सिर्फ मूंग दाल ही लेनी है। और थोड़ा थोड़ा फ्राइड फूड खा सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से इस समय फ्राइड जो है वो अलाउ किया है हल्का फुल्का, क्योंकि फ्राई में जो है वो सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। और उसके अलावा बाकी जो है जैसे जो सीजनल है, कॉर्न्स है, ये आप ले सकते हैं। और सूप्स ज्यादा आप प्रिफर करिए, जैसे नाइट में जो है सूप्स प्रिफर करिए। जी, ओके, थैंक यू डॉक्टर। और very informative, you have told us a lot of information, and will we be getting the PDF of this also? एक्चुअली मैम मैंने सारा सिर्फ अपना जो नॉलेज बेस है वही मैंने किया है, ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं किया। मैं डायरेक्ट, जी जी, बट कुछ पीडीएफ्स हैं मेरे पास जो डिसीज मैनेजमेंट और अलग अलग लाइफस्टाइल उस पे हैं, तो मैं श्योर मैं शेयर करूंगी। ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू मैम। अच्छा मीनाक्षी, डॉक्टर ये सुनीता जी आज व्हाट इज द रॉन्ग कॉम्बिनेशन फूड? एनी लिस्ट? हाँ, व्हाट आर द रॉन्ग कॉम्बिनेशन फूड? जी जी, हाँ, रॉन्ग फूड जो रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है ये रस के हिसाब से जो है रसाहार में
जैसे आयुर्वेद में जो है वो रस बताया गया है कि मीठा पहले मीठे से शुरू किया जाता है। जो अग्नि हमारी वो जो है सबसे पहले जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, उस समय हमको मीठा पहले खाना चाहिए। तो मीठा रस रस के अकॉर्डिंगली सीक्वेंस में अगर हम खाते हैं तो ये एक पैटर्न होगा। उसमें पहले मीठा खाया जाएगा, मीठी के बाद में सॉल्टी फूड रहेगा। देन सॉल्टी के बाद खट्टा रहेगा, सार फूड। सार के बाद में फिर बिटर रहेगा। और जैसे मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, कसेला। कसेला मतलब कि जो जैसे जामुन होता है, दही भी कसेले में आता है। तो ये फूड हमको लास्ट में लेना चाहिए। अब इसके बाद जो रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है, इसमें जो लस वाले जो सब्जियां होती है, जैसे अरबी है, भिंडी है, ये जिनमें लस होता है, वो उसके साथ हमको बिटर फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, कोई भी बिटर वेजिटेबल नहीं लेनी चाहिए। जैसे करेला, भिंडी, एक कॉम्बिनेशन मैंने बताया। और जो जैसे उड़द और दही, इसका कॉम्बिनेशन भी वर्जित बताया गया है, जिसमें उड़द और दही के कॉम्बिनेशन से भी हिस्टामिन्स पैदा होते हैं। उसके अलावा खट्टे फल और मीठे फल ये साथ में नहीं लेने चाहिए, इनको अलग अलग लेना चाहिए। और स्पेशली जो बिटर टेस्ट होता है, इनको जो है किसी के साथ नहीं लेकर सिंगल में लेना चाहिए। और जैसे बहुत सारे जो नॉन वेजिटेरियंस है, इनको भी इनके प्रोटीन्स जो है, नॉन वेज प्रोटीन्स के साथ में वेज प्रोटीन्स नहीं लेने चाहिए। जैसे दाल एंड जो मीट, फिश या ये लोग जो साथ में कंबाइन करते हैं, ये भी एक रॉन्ग फूड है। और प्लांट प्रोडक्ट्स एंड जैसे मैंने बताया एनिमल प्रोडक्ट, जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें विगन मिल्क के साथ जैसे कोकोनट मिल्क है, आलमंड मिल्क है, या ये जो जो भी मूंगफली, ग्राउंडनट जो है, इनके साथ में ये नहीं लेना चाहिए। जो मिल्क है या घी है, जैसे लोग कंबाइन करके कुछ डिशेस बनाते हैं, है ना, तो ये नहीं लेना चाहिए। स्पेशली एनिमल एंड प्लांट फूड साथ में नहीं होना चाहिए। Okay, anyone have any queries? Please, yes, raise your hand. So, otherwise, we are going to conclude our session. Yes, Johra ji. Johra ji, you are unmuted. Unmute yourself, Johra ji. Yes. जी 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 मैम, ये है ना, अब जो दही वड़ा बनाते हैं यूजली दाल और कर्ड से ही बनाते हैं ना। तो आप बोल रहे हैं वो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, तो कर्ड के साथ दही वड़ा के लिए कौन सी दाल बेहतर रहेगी आपके हिसाब से? आप मूंग दाल यूज कर सकते हैं। मूंग दाल। जी जी जी। जी। उड़द दाल जो ओके। है, उड़द दाल वर्जित है। जी। अच्छा, उड़द दाल नहीं डालना चाहिए। हाँ, उड़द दाल नहीं डालना चाहिए। आप उड़द अच्छा दाल को जो कांजी वड़ा है उसके फॉर्म में खाइए, वो और ज्यादा टेस्टी लगता है। अच्छा अच्छा, ओके जी, थैंक यू सो मच। जी। Okay. Thank you. Thank you, Meenakshi, for your great guidance. Okay. Anyhow, any queries? So we are going to conclude the session. Thank you very much. Thank you everyone. Thank you. Okay.
Good night, friends.